It is a comeback to the world stage for Kerala. Nearly after 19 years, Kerala is attending the World Economic Forum in Davos, Switzerland. And my colleague Shrija brings us this report on the 7-member delegation promoting the state as the next investment destination. It's a crisp morning here in Davos, Switzerland, and we are here to bring you a special comprehensive coverage where the Kerala delegation has made their visit, which means they have made a return to the World Economic Forum after a really long time, which is nearly 19-year hiatus. We see that Kerala has made this return back in 2006, which was under the leadership of late Chief Minister Oommen Chandy. And this time around, we're looking at a 7-member Kerala delegation led by Minister P. Rajiv, who's also the Law Minister and Industries Minister of Kerala. In the next few days, we're going to see a flurry of engagements with global investors. And more importantly, we have to look at their focus sectors, be it AI, robotics, and also majorly to do with their IT sectors as well. Here's what, we learned from speaking to the Minister P. Rajiv. He also went on to talk about how the next few days is going to be very busy for the Kerala delegation. We are hosting the Invest Kerala Global Summit on February 21st and 22nd. This is the right place to meet the most influential investors at a single point. That is why the delegation consisted of the Chief Secretary, Finance Secretary and Industry Secretary and myself. We are coming here to meet the investors one-to-one and also having certain roundtables with investor community. What's your word to the investors? We are already published our industrial policy 2023 and we are elaborating the potential of Vizhinjam, the Palakkad Industrial City and Kochi IT corridor. We are trying to showcase all these things to them, and I think it is a good start for the state of Kerala because we are the number one in ease of doing business of the country now. Well, and it's not just Kerala which is trying to woo investors. There are a whole host of states making that pitch to the global investors. And let's hear out what's coming in from the House of UP. We do have Mr. Manoj Kumar, the Chief Secretary at Government of Uttar Pradesh, making that pitch to the global investors. अपने कुंभ की चर्चा की तो ये महाकुंभ है जो लगभग 144 वर्षों के बाद ये प्लानिटरी अलाइनमेंट बने हैं और इसमें लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी तैयारी लगभग 1.5 साल पहले से कर रहे हैं और पूरा शासन और प्रशासन इसमें लगभग 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रयागराज में और कुंभ में इसके लिए किया गया है और अभी तक तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफ़ी एक तनाव पैदा हो जाता है वहाँ पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफ़ी स्मूथली चला है सब कुछ। ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक नींव डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए, तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे और उसमें नीचे टैंक सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। हर 70 मीटर पे कुंभ के अंदर जो लगभग 600 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं उसमें हर 70 मीटर पे आपको लाइनर के साथ डस्टबिन वगैरह मिलेंगे और ये जितने भी सेप्टिक टैंक इंस्टॉल किए गए हैं सिंटेक्स टैंक के फॉर्म में उनका रेगुलर इंटरवल पे इवैक्यूएशन होता है सक्शन मशीनों से और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट 3 बनाए गए हैं जहां उनको ट्रीट किया जाता है। तो सैनिटेशन के फ्रंट पे बहुत ही स्ट्रेंथन किया गया है। 19 में भी किया गया था और इस बार उसको एक दूसरे ही लेवल पर ले जाया गया है। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे और इसकी वजह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ
इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। बिल्कुल। दावोस की बात करते हैं। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो एक लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, और कई राज्य हैं जो इस तरह के अलग अलग लक्ष्य रखकर चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस दिशा में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली क्या क्या कदम उठा रहा है? आप यहाँ पे भी जो मीटिंग्स आप कर रहे हैं उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये 2 साल पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव करना है, ये लक्ष्य तय किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसके बाद डेलॉयट कंपनी हायर की गई एज ए कंसल्टेंट, जो सभी स्टेट के जो 70 विभाग हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है। एक स्टेट का रोड मैप है जो कि बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स के रोड मैप का ही एक समागम है, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश $317 बिलियन के साथ देश में दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। $500 बिलियन पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। लेकिन ये हम कैसे इसको $1 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज तीनों ही सेक्टर के जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव KPIs और जो भी क्राइटेरियाज हैं वो तय किए गए हैं।